managing conflict. These are the learning objectives of this chapter. First is about the conflict in organization, then different perspectives on conflict, then different forms, typologies, and approaches to the conflict, and whether the conflict is a dispute, we can discuss also about, and shifting views of the conflict. And then we have a case study. So after completing this topic, you will be able to appreciate that the organization conflicts are normal in the organization, and we can explore the different accounts of the role of the organizational conflict in the organization. What are the functions of the conflict within the organization? How conflicts can be managed, and how can the conception of the organization conflict change in last decade? So first of all, what do we mean by the conflict? So there is if you are looking into your book, this is the chapter number 8 and page number 237. So that is a interesting quote, that the conflict is the spice of a life. So whether we have talked about the teamwork, we have talked about working with the other people in the organization, but the thing is that when we are working with the other people, so sometimes there is a difference of the opinion, difference of the perspective, difference of way of seeing the things, and different expectation of the outcomes of the things, due to which the people have a conflict in the organization. So first, conflict can be seen as a dysfunctional, which is the most frequent view that the people think about conflict, that the conflicts are dysfunctional, conflict are the negative, we need to avoid the conflict, and such view is a highly judgmental about the conflict. Then we have a normative view that regard conflict, that it is like something that should be avoided at all cost, that we have a, which is the opposite of the conflict, is a cooperation, that all the time we need to have a cooperation in the organization. And analytically, the view of the conflict has been shifted from the normative prescription of what the discipline should do in the conflict situation, to focusing on what is done in the conflict. So there is and the third, that's a shift. That the first is that the conflict is a negative and dysfunctional thing. The second shift is that the conflict is a normative, in a normative perspective, that we need to avoid the conflict. And the third shift is that there has been a realization that the conflict is a normal organizational phenomenon and should be treated like such that. And so this is like three kind of a shifts, and we are going to discuss these shifts one by one. So first of all, what are the conflicts in organization? So if we look into the definition of the conflict results from actual or perceived opposition of needs, values, and interests between people working together. Actual or perceived opposition of needs, values, and interests between people working together. Have you ever faced conflict in your organization? Have you ever faced conflict in your family? Have you ever faced any kind of the conflict anywhere? आप में से कोई anyone who would like to share their experience of a conflict? किस तरह का conflict उन्होंने experience किया आप लोगों ने अपनी life के अंदर, और फिर क्या हुआ उस conflict के हवाले से? Anyone who would like to share their experience? Okay. सर वर्किंग एनवायरनमेंट में तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं. लाइक सम ऑफ द एम्प्लॉयज वांट टू हैव अ प्रॉपर 9 to 5 वर्किंग आवर्स. सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑफ द व्यू के नहीं, हमें रिलैक्सेशन दें. तो इस तरह की उनके वर्क परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ये लास्ट टाइम जब हमने अप्रेजल किया था तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल पे था कि अगर तो एक एम्प्लॉई विद इन मतलब अपने उसकी रिलैक्सिंग आवर्स के दौरान वो अपना काम कर लेता है तो उसको वो रिलैक्सेशन दी जाती थी कि वो सुबह 9 बजे ना आए. या जैसे वर्किंग बॉडीज होती हैं, कुछ की होती हैं वो नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कुछ की मॉर्निंग बॉडीज होती हैं, मतलब वो दिन में अच्छा काम करते हैं, रात को नहीं कर सकते. तो वो दोनों चीज़ों को फिर देख के फिर इसको रिजॉल्व किया था. सही एक बड़ा कॉमन सी बात है. वैसे भी एक फनी सा आइडिया है. वी आर आस्किंग एवरीवन टू बेसिकली कम एट 9 o'clock. 9 to 5 का फिनोमेना वैसे भी मुझे फनी सा लगता है. एक तो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, और दूसरा आपने सही कहा कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्टिव साइकिल. सो उनको सब लोगों को एक ही फ्रेम के अंदर फोर्स करना और बुलाना
तो और ये अक्सर होता है मुझे। आई हैव रिमेम्बर्ड वन ऑफ माय जॉब जिसमें मैं 5 o'clock हमारा क्लोजिंग टाइम होता था, 5:30 पे जाते थे, तो मम्मी कहते थे आप कहाँ जा रहे हैं जी, अभी अभी तो काम शुरू हो रहा है। और बिठाए रखते थे 8-8 9-9 बजे तक, और चाहे वो काम है या नहीं है। तो इस तरह की कई बार नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं, और फिर एम्प्लॉइज़ के अंदर मैनेजर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, कि टाइमिंग जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बात है। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्चुअल भी हो सकते हैं और परसीव भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट हो जिस तरह टाइमिंग के हवाले से, और कॉन्फ्लिक्ट हमारी परसेप्शन में भी हो सकता है कि हम, क्योंकि हम लोग कई बार मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ हमारी एजुकेशन होती है, मुख्तलिफ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम ये जिस चीज़ को जिस तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, वो अगला शख्स दूसरे को उस तरीके से शायद परसीव ना कर रहा हो, या उस तरीके से ना देख रहा हो। मसलन एक पर्सन है जिसका बैकग्राउंड ज़रा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट एजुकेशन से, डिफरेंट माहौल से आया है, उसको उस तरह का चीज़ों को समझना और फिर एक और शख्स का उसको देखना कई बार फ़र्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी डाइवर्सिटी है, इंसान की पर्सनैलिटी लेवल के ऊपर तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जहाँ आपके साथ ही 26 नेशनैलिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग बैठे हुए हैं, तो कल्चर की इंटरप्रिटेशन की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इवन सिंपल साइंस की वजह से, मतलब कहीं जो है अगर आप साइन कर रहे हैं थंब का, तो थंब के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है साइन के हवाले से, तोहफा देने के हवाले से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, और उसके हवाले से अख्तलाफ भी हो सकता है, उसके हवाले से जो है वो चीज़ें हो भी जाती हैं। तो कहने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग अपने क्लैश बिटवीन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट की वजह से, नीड्स की वजह से, वैल्यूज़ की वजह से, आउटकम की वजह से ये बातें हो सकती हैं। अब जब मार्क्स की जो थ्योरी थी वो कहता था कि एक सोसाइटी के अंदर एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है क्लासेस के दरमियान। ये मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं, सोशल क्लासेस उसने कहा था एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर, और इन सोशल क्लासेस की आपस की पावर स्ट्रगल की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी तो है नहीं, जब वो सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये तो एक मार्क्स की भी इसके हवाले से थ्योरी थी। ज़्यादा जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादा फोकस ये करती हैं जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो कि बैरूनी फैक्टर्स हैं, आउटसाइड फैक्टर हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लिंक करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कम हुई हुई है। लेकिन आपको ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल भी नहीं, ज़ात के कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ तो भरा डिस्कस नहीं किए जाते, साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, जहाँ इंसान की ज़ात के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट सेल्फ्स के अंदर अगर कोई ऐसी बात है तो वो वहाँ डिस्कस किया जाता है। लेकिन बहरहाल हम तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, उसको ज़्यादा डिस्कस किया गया है। और बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म्स जो हैं वो ले सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक फॉर्मल अथॉरिटी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फिर उसकी क्या रेजिस्टेंस है, फिर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। मतलब एक प्रोफेसर हैं, ये एक ग्रुप है, अगर सपोर्ट स्टाफ है दूसरा ग्रुप है, और मैनेजर्स हैं दूसरा ग्रुप है, एम्प्लॉयज़ हैं एक और ग्रुप है। इन ग्रुप्स की आइडेंटिटीज़ के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये एथनिक भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड भी हो सकता है, मर्द और ख़वातीन का भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल लेवल पे हो सकता है, हम मार्केटिंग के लोग हैं या फाइनेंस के लोग हैं या ऑपरेशनल लोग हैं, डिवीजन बेस पे भी हो सकता है, लाहौर डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन। ये मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैं वो हो जाते हैं। ओके जी, तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी नेचर है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो बुनियादी तौर पे आप ये समझिए कि क्योंकि इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमें अंदर से जो इंसान है उसकी जो है मुख्तलिफ तरीके से वो परसेप्शन होती है, और एक कॉमन परसेप्शन भी एग्जिस्ट करती है चीज़ों के हवाले से। तो उस जगह के कल्चर को समझना और उस कल्चर के मुताबिक जो लोग उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसको समझना भी इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते भी इस वजह से हैं कि जब हम ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो गलत है। ये जो मैं वाला कॉन्सेप्ट है, कभी कभार ये मैं ईगो के भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इंसान कहता है कि ये मैंने कहा है, अगला कहता है जी ये मैंने कहा है। उस मैं के वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल है। फैमिलीज के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बहरहाल इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे
किया जा सकता है, कॉन्सिलेशन की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इस हवाले से। ओके जी, अच्छा जी, अब करंट पर्सपेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हैं, और ये एक 1950 की सोशियोलॉजिस्ट की फंक्शनल सोशियोलॉजी की थ्योरी से ज़्यादा लिंक करते हैं कि वेदर कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेगेटिव फिनोमिना और दैट इज डिस्ट्रक्टिव और डिसरप्टिव, और इफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इट हैज़ अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट की जो वो थ्योरीज हैं वो ज़्यादा लिंक इस बात पे करती हैं कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या है। अगर कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम जो है वो प्रोडक्टिव है तो वो प्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट का आउटपुट जो है वो नेगेटिव है तो फिर जो है वो एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। तो बहरहाल इस हवाले से ये एक टेबल आपके सामने है, 8.1 है, ये आपकी बुक में भी दिया गया 239 के हवाले से, और इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बताए हैं, कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स क्या हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के जो हैं वो डिसिपेंट्स कौन होते हैं, और सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं। और जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट आप हवाले से देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर, इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो उसके जो डिसिपेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल्स होंगे, ऑफन डायट्स। डायट्स का मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल के दरमियान का रिलेशनशिप, दो इंडिविजुअल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, दो लोगों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बुनियादी वजूहत क्या होती है, आपका क्या ख्याल है, जब दो लोगों में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? सर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉग्निशन लेवल है, थिंकिंग डिफरेंट है, बिहेवियर्स डिफरेंट है, तो यही होता है। दोनों, हालांकि दो लोग हैं, दोनों ठीक हो सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन में। सर ईगो भी हो सकती है, ईगो की वजह से देयर कैन बी अ कंपटीशन बिटवीन टू। इफ वी आर हैविंग टू इगोइस्टिक पर्सन तो वो एक दूसरे मतलब से अग्री नहीं करते और किसी एक मतलब कॉमन पेज पे नहीं आ पाते, तो मे बी दैट कैन बी द रीजन। तो एक उर्दू की मुहावरा है ना कि एक अनार और 100 बीमार। तो अगर रिवॉर्ड जो है वो एक हो, मसलन एप्पल एक हो, और उसके दावेदार जो है वो ज़्यादा हो जाएं, तो फिर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। फिर उस कंपटीशन के नतीजे में ये होता है कि कोई जीत जाए तो अच्छी बात है, तो वो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट वहाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ कई बार उसको रंजिश बना लेते हैं लोग और उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे तक ले जाते हैं। कई आपने जगह देखी है, मैं उस दिन केस देख रहा था, यहाँ टीवी पे रिपोर्ट हो रहा था जिसमें जनाब केस का फैसला किसी पार्टी के हक में हो गया, और वो पार्टी थोड़े अरसे बाद गई है, कोर्ट के बाहर निकली है, तो उनके ऊपर मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग कर दी। तो कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके बड़े नेगेटिव आउटकम भी आ जाते हैं, गुस्सा, नेगेटिव इमोशन है कि लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और इस तरह के इमोशन जो है वो इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर लोग ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर उनको ये भी लग रहा हो कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है इस कंपटीशन के दौरान, तो ये भी आपने बात सही कही, कंपटीशन एक सोर्स बन जाता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा सोर्स इनकॉम्पेटिबिलिटी, पर्सनैलिटी का डिफरेंसेस। कई बार दोनों लोग ही ठीक अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन बस कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से अगला बंदा जो है उससे हवाले से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी बात हो जो कोई बड़ा अगले बंदे को इरिटेट करती हो, और उसको भी ना पता हो कि जिस वजह से वो इरिटेट हो रहा हो सकता है कोई ऐसी, कोई उसकी अपनी कोई मेमोरी ऐसी थी अपनी चाइल्डहुड के हवाले से जो कि मेमोरी उस पर्सन में प्ले कर रही हो और वो इरिटेट हो रहा हो, और वो उस पर्सपेक्टिव से देख ही ना रहो जिस पर्सपेक्टिव से वो कर रहे हैं। कभी कभार जब हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो तब हमें मालूम होता है कि अगला बंदा की तो वो नीयत या इंटेंशन होती ही नहीं जो हम सोच समझ के बैठे हुए होते हैं ना। वो एक कॉल है ना, देयर इज नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट। कभी कभार इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारी थिंकिंग जो है वो उस मामले को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। तो बहरहाल आपने सही का, कंपटीशन है, इनकॉम्पेटिबिलिटी है, पर्सनैलिटी का डिफरेंसेस हैं, वैल्यूज का डिफरेंसेस हैं, वैल्यूज के डिफरेंसेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अगर एक पर्सन की वैल्यू इंटेग्रिटी है और दूसरा कहता है कि नहीं भाई थोड़ी बहुत करप्शन की जा सकती है, तो ये एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और वैल्यूज के ऊपर, बिलीफ के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज बहुत कम करते हैं, तो ये सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। दूसरा जो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटर ग्रुप है। इंटर ग्रुप से मुराद है टीम्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाना। अब टीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ टीम्स बन सकती है, मार्केटिंग टीम है, फाइनेंस टीम है, ऑपरेशन की टीम है, इंजीनियरिंग की टीम है, और वर्क रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि काम करने का तरीकाकार क्या होगा। आप एक, मतलब हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, मैं मार्केटिंग ऑफिसर था,
तो फाइनेंस वाले समझा करते थे, मार्केटिंग ऑफिसर वाले तो सारा दिन बाहर सैर करते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं और शाम को आते हैं और अपनी सेल्स क्लोज करके चले जाते हैं। हमें लगता था कि जी हम ही जैसे सारा काम करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बिजनेस लेकर आते हैं, जबकि फाइनेंस वाले सिर्फ हिसाब किताब करते हैं। अब ये जो टीम कॉन्फ्लिक्ट था, हमें एक दूसरे की काम की उस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेवल भी एक था। जब एक दूसरे का कम्युनिकेशन बढ़ी तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि उनका काम भी क्या है, आपका काम क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ द वर्क डेवलप हो जाती है। तो वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ड्यू टू एम्बिगिटी, कि हमें मालूम नहीं होता अगला बंदा क्या काम कर रहा है या ग्रुप क्या काम कर रहा है या किस तरह काम कर रहा है। तो फिर आपसे बातचीत से, कम्युनिकेशन से वो मामला जो है वो फिर रिजॉल्व किया जाता है। वेल, रिजॉल्व ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी तो हम लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर 2 लोगों के दरमियान जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, फिर टीम्स के दौरान, फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आपस के कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट नेशनल कल्चर होता है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी compete कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, और उस कंपटीशन के नतीजे में भी कभी कभार जो है उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको सामने नजर आते हैं। आप अगर देखें नेशनल लेवल के ऊपर देख लें, पार्टीज के आपस के कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, और फिर कभी कभार वो तो भारत किसी और ही लेवल पे चले जाते हैं, जातियात के लेवल पे और पर्सनल लेवल के ऊपर हो जाना, वो ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर, अपनी पार्टी से निकल के वो कुछ और ही बात बन जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, इदारों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एक इदारा कह रहा है कि इस काम को इस तरह करना चाहिए, दूसरा इदारा कह रहा है इस तरह काम करना चाहिए। फिर आपकी अगर ब्यूरोक्रेसी है, फिर आपके अदालतें हैं और बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके आपस के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और इदारों के इदारों से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन भी एक सोर्स बनता है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट इंटरेस्ट भी होता है जिसमें देखा जाता है। और फिर अगर आप ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एक नेशनल कॉर्पोरेशन है, उनके इंटरेस्ट किस तरीके से डिफर कर रहे हैं, किस तरीके का कंपटीशन है, ये भी कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के 3 लेवल हो गए, एक इंटरपर्सनल लेवल हो गया, एक इंटर ग्रुप लेवल हो गया, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो गया। ये जो मैंने तीनों लेवल आपको बताए हैं, तो इन तीनों लेवल के हवाले से कोई अगर आपको सवाल आपके ध्यान में तो बताइए। ओके जी, तो लेट्स मूव ऑन। अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की कितनी टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप जो है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और वर्सेस डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं और कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। और ये एक शिफ्ट आया कॉन्फ्लिक्ट की लिटरेचर के हवाले से कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखा गया, और नेगेटिव टू अ फंक्शनल व्यू ऑफ इंटर, जो कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो ज़्यादातर नेगेटिव व्यू के हवाले से देखा जाते थे। और 1970s के बाद देखा गया कॉन्फ्लिक्ट को स्लोली कैन बी परसीव्ड एज अ प्रोडक्टिव फोर्स एज वेल, एंड दैट कैन बी हैंडल्ड इफ दे कैन बी हैंडल्ड करेक्टली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बेहतरी भी लेकर आ सकती है। और इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है, तो जब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उनका एस्टैब्लिश होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे की तरफ लेकर लिया जाता है। बहरहाल आजकल जो है कॉन्फ्लिक्ट कैन बी वाज नाउ व्यूड एज अ पोटेंशियली प्रोडक्टिव फोर्स बिकॉज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमारी जो ज़्यादा फोकस है, जिस बुक में ज़्यादा फोकस रहा है, वो 1950s से ऑनवर्ड रिसर्च के हवाले से बात रही है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की तो तारीख बहुत पुरानी है। अगर अब्राहमिक रिलीजन के अंदर देखा जाए, जो स्टोरी है उसके हवाले से हाबील और काबिल की, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है, और इसको हाईलाइट भी किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, और आपको मुख्तलिफ स्टोरीज आपको जो बताई जाती हैं किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हुए। इसका मतलब है कि इंसान की है तबीयत के अंदर जो है वो अख्तलाफ जो है वो हो जाता है। ओके जी, बहुत सारा हिस्टोरिकल लिटरेचर जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मौजूद है, वो इस बात पे है कि कंट्रोल किया जाए, अवॉइड किया जाए, एलिमिनेट किया जाए सोशल कॉन्फ्लिक्ट को। और जिस तरह अगर हम फिलोसफर्स के हवाले से बात करें, प्लेटो की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, दे शेयर्ड एन इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन द नीड टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। और तो उन्होंने बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट को देखा था वो एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट देखा था, दैट इज अ थ्रेट टू द सक्सेस ऑफ द स्टेट and arguing that the state should be responsible for keeping conflict to the absolute minimum level.
बहरहाल बाद में 17th सेंचुरी के अंदर जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज आई, इसमें थॉमस हॉबस एंड जॉन लॉक की बात हुई है कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का सेंट्रल रोल जो था वो कंट्रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, सो एज टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर इन द सोशल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल ये ज्यादा फोकस जो था उस वक्त की थ्योरीज का, ये 17 जो आपको सेंचुरी की आपको बता रहा हूँ, वो डायलेक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज्यादा इस हवाले से था। और उसके बाद हेगल और मार्क्स की भी मार्क्स की थ्योरी आई। मार्क्स ने तो बहरहाल सोशल क्लासेस के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात की। और बहरहाल मॉडर्न वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हुआ, शुरू के थ्योरिस्ट ने यही कहा कि इसके अंदर डिसफंक्शनल फिनोमेना है और दे considered as altogether bad, and it's a breakdown of the mechanism of the decision making in the organization and basically different from the cooperation. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मली जो डायकॉटमी है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के अंदर, यानी कॉपरेशन के ऑपोजिट समझा गया, और जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया गया जब कॉपरेशन नहीं होती तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आते हैं। फिर उसके बाद कुछ और राइटर आए और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट्स, हमें ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन में फर्क करना चाहिए। और दे बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज बाय कॉन्सेप्चुअलाइजिंग it narrowly as avert behavior or social interaction process occurring after the perception of mutually incompatible goals or values। यानी अगर आपके गोल्स और वैल्यूज के अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी है, आपके गोल्स और वैल्यूज के अंदर फर्क है, उसके नतीजे के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के कभी कभार हॉस्टाइल आउटकम भी आ जाते हैं, गुस्सा, रिवेंज, इस हवाले से, और कभी कभार लोग जो है रिएक्ट भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसा कम देखा गया है। लेकिन उन माशरों के अंदर जहाँ असले का इस्तेमाल जो है वो राइज है और जहाँ असले का इस्तेमाल जो है वो इनकरेज किया जाता है, वहाँ आपको इस तरह के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ लोग जो हैं अपने, जिन लोगों से अख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसके लिए वो असले का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। तो इसलिए कुछ वाक़यात ऐसे देखे गए हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात की जो तादाद है वो कम है कि जहाँ लोग गुस्से में आकर रिएक्ट करते हैं जब उनके कोई उनकी कोई वैल्यू, कोई बिलीफ जो है वो चैलेंज हो रहा होता है। हमारे माशरे में भी आप देख सकते हैं कि जब लोगों का इख्तलाफ, हम इख्तलाफ राय करने के लिए तहजीब का रास्ता भूल जाते हैं कि हम, आपका और मेरा इख्तलाफ भी हो सकता है पर हम एक दूसरे की इज्जत भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान जो है इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को जब आप जजमेंटल लेवल पे देखेंगे, आप उसको जज करेंगे, तो जजमेंटल जो लेवल है वो आपको नेगेटिव इमोशन की तरफ जो है वो लेकर जाता है। ओके जी, तो बहरहाल ये कुछ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात थी। कुछ लोग कंपटीशन को भी कॉन्फ्लिक्ट समझ बैठते हैं। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कंपटीशन को कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है क्योंकि वो बिहेवियरली आपकी, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट है इस वजह बुनियाद के ऊपर। ओके जी, अब ये तो मैंने आपको डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात बताई। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल फॉर्म ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। अर्ली टेंडेंसीज तो यही थी कि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल देखा गया, और नंबर ऑफ रिसर्च बट हैव पॉइंटेड आउट द पॉजिटिव डायनामिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। एक कोसर ने बुक लिखी, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और इन विच ही contended that the conflict is not always socially destructive but rather an essential mechanism in the positive evolution of society as well। उसके बाद वाले theorist ने भी ये कहा कि conflict जो है that can also contribute positively in the organization, it is not always the bad, however under that it disturbs the equilibrium of the organization। और ये तकरीबन तमाम स्टडीज के अंदर assumption यही रही है। अब equilibrium in the organization से क्या मुराद है? जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम याद होगा, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद ये होती है कि एक अपनी बॉडी जो है, जो मटेरियल बॉडी है, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है, चाहे वो स्टेट जो है वो रेस्ट की है या चाहे वो स्टेट जो है वो मोशन की है, उस हवाले से वो उसको कंटिन्यू करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इक्विलिब्रियम होता है जिसके हवाले से वो ऑपरेट कर रही होती है, जिसको कुछ लोग स्टेटस को भी कहते हैं। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन का इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करती है, ताकि उस पे जाके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो
ज़्यादा रेगुलर हो जाए। इसलिए हमने बात की थी ना, जब लीडिंग की बात की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आपको चेंज के दौरान ज़्यादा सूटेबल होता है, जबकि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है, जो नॉर्मल स्टेटस को होता है या इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा महसूस करते हैं। और ये थ्योरी जो है लिंक करती है फंक्शनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम के साथ भी। इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा पंचुएटेड इक्विलिब्रियम को, अभी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये एक अजम्पशन है कि जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर पॉइंट से और बेहतर वे से आगे की तरफ बढ़ती है। और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम बाय आर्गुइंग दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली फंक्शनल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एसेंशियल टू वेरी एग्जिस्टेंस। मतलब आप ये देख लें, जो क्राइसिस आया अभी 19 के हवाले से, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह ऑपरेट करती रहती जो कि पहले कोविड से करी थी, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकी। अगर हमारे टीचर जो हैं वो उसी मेथड पे चलते रहते जिस मेथड पे वो पहले चल रहे थे, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर हम लोग अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू, अगर स्टूडेंट्स भी अडेप्ट नहीं करते एक न्यू लर्निंग मॉडल की तरफ, तब भी वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और वो कहेंगे जी ये तो हमारे साथ हम समझ नहीं पा रहे इन चीज़ों के हवाले से। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, पूरी दुनिया का डिस्टर्ब हो गया, मुल्कों का डिस्टर्ब हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का डिस्टर्ब हो गया। जब आप भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनके इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हुए, उन्होंने किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की ताकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट गेम के सामने आया एक डिफरेंट, देखें ना, एक आपकी वैल्यू थी कि फेस टू फेस क्लास की, अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऑनलाइन मॉडल में जाना पड़ा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, आपने देखा गया स्टूडेंट के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए, उन्होंने कहा जनाब हम जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे और फेस टू फेस नहीं देंगे। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर कुछ जगहों पे देखा गया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए हैं, ये मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम की डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए, और फिर किस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने तो कॉन्सिलिएशन किया, वो एक और प्रोसेस। बहरहाल इसमें जो टाइपोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो नेचर है, 3 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नीचे आप देखेंगे, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं, 2 लेवल के ऊपर होंगे। जो टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो 2 लेवल्स के ऊपर होंगे। सॉरी, मैं इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट थिंग। दिस इज अगेन द टाइपोलॉजी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, दिस टाइपोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट डू वी मीन बाय द टास्क कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न्स disputes about the distribution and allocation of resources and opposed view with regard to the procedures and policy that should be used or adhered to। और मतलब जो काम आपका जो काम का जो एक्चुअल टास्क है, जो टास्क आपने परफॉर्म करना है, उसके हवाले से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मतलब आप कहें जनाब ये मैं हमें प्रोजेक्ट मिला है मैनेजिंग एंड लीडिंग का, मैं इस स्कूल के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, ये एक टास्क है। अगला कहेंगे नहीं जी हम स्कूल पे काम नहीं करना चाह रहे, हम तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं। तो टास्क तो है कि आपने ये काम करना है, लेकिन चॉइस जो है उस टास्क के अंदर क्या काम करेंगे हम, उसके हवाले से इख्तिलाफ राय हो सकता है। और उस यानी कि पॉलिसीज के हवाले से इख्तिलाफ राय हो सकता है। मतलब आप कहेंगे जनाब हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम पे फॉर परफॉर्मेंस लेके आना चाहते हैं। एक कहने जी हम पे फॉर परफॉर्मेंस नहीं रखना चाहते, बल्कि हम पे फॉर सीनियोरिटी रखना चाहते हैं। तो ये इख्तिलाफ हो गया। ठीक है ना, टास्क ये है कि पे कैसे डिसाइड करनी है हमने, लोगों की पे और रिवॉर्ड कैसे, इंसेंटिव कैसे डिफाइड होगा। अब उसका एक तरीका कार तो ये है कि आप ये कहेंगे जनाब हम परफॉर्मेंस के बेस पे पे देंगे, दूसरा ये कह सकते हैं कि आप सीनियोरिटी की बेस पे पे दे दें, स्किल की बेस पे पे दे दें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि टास्क रिलेटेड होगा, एक पॉलिसी को, एक प्रोसीजर को, एक काम को आपने करना है, उस काम को करने के हवाले से कि वो काम क्या होगा, उसके हवाले से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप कहेंगे अच्छा जी हमने एक वेबसाइट डेवलप करनी है, अब वेबसाइट डेवलप करने के लिए कौन से वेंडर को हम जो है ये ऑर्डर देंगे, ये हो गया। एक है आप मसलन कोई एक पर्सन कहे, जैसे मेरे सामने जो नाम आ रहे हैं, सना कहेंगे जी हम पार्टी ए को देंगे, तो मेराल कहें हम पार्टी बी को देंगे। इसी क्या वजूहत होंगी, क्या रीजनिंग होगी, वो रीजनिंग करें। इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपस में इख्तिलाफ राय हो सकता है। ऐसे इख्तिलाफ राय को हम कहते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट। ओके जी, जो हमारे डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं अपनी ईगो के हवाले से, जैसे अभी किसी ने जिक्र किया था कि ईगो के हवाले से जो हमारे डिसएग्रीमेंट होते हैं, पर्सनल इशू हमारे क्रिएट हो जाते हैं,
हमारी कोई आइडेंटिटी थ्रेट में आ जाती है, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। और ये पर्सनल इश्यूज की वजह से आते हैं, डिफरेंट प्रेफरेंसेस की वजह से आ सकते हैं, डिसोनेंट वैल्यूज के फ़र्क की वजह से आ सकते हैं। इसमें ये रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। और इसके नतीजे में जिसका आउटकम होता है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है वो मोटिवेट करता है कि आप आउटकम को डिस्कस करें। आप कहें जी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, दूसरा क्या इस पे करना चाह रही हूँ, तो आपस में डिस्कशन होगी। क्यों? इसका आपको फायदा होता है कि आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, हो सकता है कोई बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए और उससे ओवरऑल टास्क बेहतर हो जाए। दूसरा ये है कि जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है उसका ज़्यादातर नतीजा डिसफंक्शनल निकलता है, क्योंकि वो तो ईगो की बेस पे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, उसकी बुनियाद पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ज़्यादातर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। आपस में ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है, परफॉर्मेंस लेवल भी इफेक्ट कर सकता है। बहरहाल उसको अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट करती है। तीसरा जो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, और ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही रेलेवेंट है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि उस काम को करेंगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट टास्क। अच्छा, इस बात पे टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है, अब डिसाइड हो गया तो अब हम करेंगे कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू परफॉर्म, आर वी गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यूज, आर वी गोइंग टू have a look on the website, are we going to explore all the options, and what are the procedures of doing that thing, and even for the pay, if that's a pay for performance we are going to implement it, then we are how we are going to implement it, for which level of the people we are going to implement it. So that how is basically the process, and this is also one kind of the functional conflict, because when the people are discussing each other that how we are going to perform that task, so they are coming up with a different kind of the ideas to perform that task, and that becomes functional for the organization to resolve that problem and how we are going to implement it. Okay, 1 minute is left.